टोकनाइजेशन था। हाँ, टोकनाइजेशन, राइट। हाँ, उसमें टोकन नंबर जनरेट होता है फॉर अ गिवन क्रेडिट और डेबिट कार्ड। तो ये इसलिए लाई थी फैसिलिटी टू एक्सपोज कस्टमर टू हैकिंग या प्राइवेसी या आइडेंटिटी थेफ्ट और मिसयूज। तो ये ओरिजिनल कार्ड नंबर का मास्क कुछ होता है, तो हिडन होता है। करेक्ट, ठीक है, टोकनाइजेशन हो चुका है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। Which of the following links all the ATMs in India? पहला है IBA, दूसरा है NSDL, तीसरा है NPCI, फोर्थ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बताना है। एनपीसीआई ना? NPCI। एनपीसीआई, आई थिंक एटीएम तो काफी ATM एनपीसीआई वो कुछ तो नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ ऑल एटीएम्स जिनको एनपीसीआई हैंडल करता है। नाच कुछ तो भी है, नाच NACH। नेशनल ऑटोमेटेड वो क्लियरेंस इज अ क्लियरिंग स्विच, हाउस, राइट? वो तो अलग है भाई ना, वो चेक का है। देख लेते हैं। 44 का सी है। National Payment Corporation of India was founded on 2008 for the operation of retail payment in India. It is the apex authority for maintaining a nationwide link of all ATMs in India. NPCI exercises this role through its wing, IDRBT, Institute for Development of Research in Banking Technology. IDRBT creates a massive network called National Financial Switch in 2004 for linking ATMs in India. Okay. Other functions are IMPS, affiliation of RuPay, National Automatic Clearing House. I think ये आप बोल रहे थे गजानन, ACH. ये हाँ आप देखिएगा, ये शायद चेक का है, मुझे जितना पता है, थोड़ा चेक कर लीजिएगा। हाँ, NACH यहाँ पे लिखा है जो। आई थिंक हाँ, ये शायद वो पेमेंट्स क्लियरेंस के लिए होता है, तो आई थिंक चेक भी इसमें इंक्लूड होता है। आधार, अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ऑपरेशन ऑफ चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक का ये ट्रैक व्हाट he was saying about check something, no? This check truncation system is for that. हाँ, फिर NACH के ऊपर किसी को क्लियरली आइडिया है क्या है? देखने को। ये वो है क्या कि जैसे एक SBI और एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो आपस में इनका शायद चेक्स का सिस्टम है, इधर उधर पैसे जाने होते हैं, तो हाँ, और इसमें तो दो तरीके के बताए थे डिजिटल पेमेंट सिस्टम, एक रियल टाइम और एक डिलेड सिस्टम। तो ये NEFT, NECS, नाच, ये सारे डिलेड में आते हैं, और रियल टाइम में हमारे IMPS और RTGS। तो फर्क तो उसने सिर्फ यही बताया था। ये देख लेंगे। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस is a service offered by NPCI to banks which aims at facilitating interbank high volume, low value debit credit transactions which are repetitive and electronic in nature. राइट, आई थिंक वो शायद ये होता होगा ना, कुछ पेमेंट जो हम ऑटोमेट कर देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया और ये सब चीजें होती हैं, आई थिंक शायद उसके लिए है ये। No. Actually, I think he is saying interbank high volume, low value. Like what Aditi was saying, no? Like if two banks have to clear their dues among themselves. हाँ, तो वो आपस में okay, for example, like I want to make a payment and the vendor is having a bank account of SBI and my card is of suppose Axis Bank. Suppose if I made a transaction and if that money has to go to the SBI, I think there this NACS comes into play. This NACH, I think. I'll still confirm and put it in the group today. ठीक है, ओके। तो मेरे को इस पे कंफ्यूजन है ना, रिपीटेटिव है, ठीक है। और Nexus Check Truncation System is an online image-based check clearing system undertaken by RBI for faster clearing of checks. It eliminates the associated cost of movements of physical checks.
Basically, वो check- कोई आप इनविटेशन कुछ एक्सेप्ट कर लीजिए संजय जी। कोई नहीं है। है ना, दीदी जी ने बताया, अभी किसी का जिक्र किया, देखिए। अरे कहाँ से देखो, कोई नहीं है, ये देख। अक्षय हाँ, वापस सही बोले है। उनको रिक्वेस्ट भेजेंगे। और ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम आ गया ना समझ? हाँ पेपर हाँ, वो आगे डाउट तो नहीं बढ़ता है। है? Then आता है 45. Which of the following statements correctly describe the meaning of legal tender money? The money which is tendered in courts of delay of law to defray the fee of legal cases. The money which a creditor is under the compulsion to accept in settlement of his claims. The bank money in the form of checks, draft, bill of exchange, etc. The metallic money in circulation in a country. B is the answer. Metallic money. Creditor is under compulsion to हाँ, accept in settlement. creditor is under compulsion to accept in settlement of his claims. करेक्ट। बी या डी बोल रहे हो? B, वो B, B, B for B, Bombay. मेरा, all. अरे भाई मेरा फोन का साउंड कम है, तब से बोले जा रहे हैं। सही, सॉरी सॉरी। हाँ, सॉरी। अरे हेडफोन लगा लीजिए। भाई ठीक है, धन्यवाद। कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, every currency note bears from a promise from the governor of RBI that if someone produces the note to RBI or any other commercial bank, RBI will be responsible for giving the person purchasing power equal to the value printed on the note. The same in case of coins. They are also called legal tenders as they cannot be refused by any citizen of the country for settlement of any kind of transactions. और बीच में एक बवाल हुआ था ना, वो 10 रुपए वाले कॉइन ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पेट्रोल वाले। वो ऐसी बकवास है वो। तो यही है। हाँ, एक न्यूज़ बता देते हो। अच्छा 1 रुपी कॉइन कौन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी। Government tender. Oh, वो sorry. वर्बों की नोट है। 1 rupee coin. नोट शायद पूछना चाह रहे हो। हाँ, exactly. हाँ हाँ, वो फाइनेंस सेक्रेटरी Note. करता है। Yes. ठीक है। और कॉइन्स की मिंटिंग जो है वो भी आई थिंक फाइनेंस है, उसके अंदर ही हाँ गवर्नमेंट के अंडर आता है। Government. और एक उस कोलकाता में है ना वो प्रिंटिंग मशीन है, ऐसा कुछ MM से कुछ ऐसा नाम है। 4 जगह है ना आरबीआई का भारत में। मिंटिंग का देखो। संजय इनवाइट देख ले एक बार। कर दिया यार, आकांक्षा का थी ना। नहीं एक और थे देखो। और तो कोई नहीं है। लिंक नया वाला सेंड कर, शायद वो तू पुराना वाला सेंड करा होगा किसी को। कर दिया तो देख। हाँ, शरी किरण शुक्ला। देन आते हैं कॉइन्स मिंट होते हैं 4 जगह, अलीपुर, कोलकाता, सैफाबाद, हैदराबाद, चेरलापल्ली, हैदराबाद और नोएडा, यूपी। हैदराबाद में 2 प्लेसेस हैं, एक कोलकाता, एक Saifabad and Chellapalli. सैफाबाद और चेरलापल्ली ये 2 हैदराबाद में है। हाँ। कोई पास में रहता है क्या, पूरा कॉइन ही कॉइन रखेगा? So what are the purpose of intercreditor agreement signed by Indian banks and financial institutions recently? To lessen the government of India's perennial burden of fiscal deficit and current account deficit, to support the infrastructure project of central and state governments, to act as independent regulator in case of application for loans of rupees 50 crore or more, or to aim to add faster resolution of stressed 50 crore or more, which are under consortium lending. भाई जी थोड़ा ऊपर कीजिएगा। नहीं है क्वेश्चन। तो बताइए। इंटरक्रेडिटेड एग्रीमेंट कहाँ पढ़ा था हमने? आई थिंक डी में ही तो पढ़ा था ना, लेंडिंग के टाइम इंटरक्रेडिटर एग्रीमेंट होता है। ये स्ट्रेस्ड वाले में नहीं आएगा क्या? स्ट्रेस्ड एसेट्स
हाँ वही मतलब डिफॉल्ट के टाइम वो आपस में सब एग्रीमेंट कर लेंगे ताकि उसका एक रेजोल्यूशन हो सके। आईबी उससे है क्या, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से रिलेटेड है या इनके IBC. उसी से रिलेटेड है। ऑलराइट, आई थिंक फिर Uh, बाकियों को क्या लग रहा है इस पे? डी ही लग रहा है, डी बोल रहे हो ना? हाँ डी बोल रहा हूँ, डी। डी लग रहा है। 46 का डी है, ठीक है, पढ़ दो कोई। Intercreditor Agreement (ICA) is aimed at the resolution of loan accounts with a size of rupees 50 crore and above that are under control of a group of lenders. It is a part of SASACT plan approved by the government to address the problem of resolving bad loans. So the agreement is based on recommendation by Sunil Mehta committee that looked into resolution of stressed asset. The agreement says that if 66% of the lenders by value agree to a resolution, it would be binding on all lenders. The dissenting creditors will, however, have an option to sell their loans to other lenders at a discount of 15% of the liquidation value or buy the entire portfolio paying 125% of the valued agreed under the debt resolution plan by other lenders. यहाँ पे ये जो बैड बैंक का ARC भी आता है ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और एक AMC भी आता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो अलग चीज है ना इससे तो। हाँ हाँ, वो बैड लोन्स के लिए है ना, जो हाँ, पैरा बैंक आता है जो बैड बैंक। हाँ हाँ ठीक है। ARC तो मतलब वो कंपनी है, तो उसको सेल कर देते हैं, तो उसमें से जितना भी कुछ बचा रहता है उस फैक्ट्री इंडस्ट्री या जो भी है एस्टैब्लिशमेंट, तो उसमें से सैल्वेज करके जो भी कॉस्ट निकलता है वो चीज़ निकाल देता है। तो आई थिंक इंडिया में उसका मतलब आउटपुट कम ही रहता है, तो इतना ज़्यादा बेनिफिट है होता नहीं है ARC। इज इट समथिंग लाइक वो अनिल अंबानी का कुछ कंपनी है ARC रिलेटेड, ऐसा कुछ है क्या? हाँ हाँ, उसका भी एक कंपनी है ऐसे ही। ये बेसिकली इनका प्लान ये रहता है कि बैंक का जो बैलेंस है ना, बैलेंस शीट, उसको क्लीन रखे। तो ये राइट ऑफ कौन सी, एक बार समझा देना। आई थिंक राइट ऑफ, तब बेसिकली क्या होता है अपना, वही जो अभी शाश्वत ने बोला ना, बैलेंस शीट क्लीन करने के लिए वो लोग कर देते हैं कि ये जो एसेट है इसकी रिकवरी नहीं हो सकती, उस चीज को वो राइट ऑफ कर देते हैं कि हमने मतलब अब इसके लिए परस्यू नहीं कर रहे हैं एक्टिव। मुझे बस याद दिला देंगे, मैं एक आर्टिकल डाल दूंगा, उस पर पूरा बैड बैंक के बारे में लिखा है पूरा। तो फिर आता है क्वेश्चन नंबर 47। Which of the following statement best describe the term schemes for sustainable structuring of stressed asset (S4A) recently seen in news? It is a procedure for considering ecological cost of development schemes formulated by the government. It is a schemes of RBI for reworking the financial structure of big corporate entities facing genuine difficulties. It is a disinvestment plan of the government regarding central public sector undertakings, and it is an important provisions in the IBC recently implemented by the government. सस्टेनेबल की बात हो रही तो ए लग रहा है मुझे, आप बताइए। बी लग रहा है, बी लग रहा है मुझे, क्योंकि क्या एक बार बताइए। हाँ, स्ट्रक्चरिंग और रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं ना वो, स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स मतलब सॉर्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, तो आई थिंक बी शुड बी द आंसर। बी ही है। वो ऐसा होता है ना कि पहले 30 डेज में SMA1 फिर SMA2 और SMA3 आ जाता है, तो उसके बाद जो अच्छी कंपनीज होती है जो एक्चुअली फेस कर रही होती है डिफिकल्टीज, तो उनके लिए लोन को वापस रीस्ट्रक्चर किया जाता है ताकि आप फिर से ये वही स्कीम है ताकि स्ट्रेस जो असेट्स है हमारे, तो जो भी लोन्स उन्होंने लिए होते हैं तो उनको रीस्ट्रक्चर करके फिर उनको ये स्कीम दी जाती है। करेक्ट। हाँ, इसका आंसर देख लेते हैं। 47 का बी है, ठीक है। कोई रीड कर दो इसका एक्सप्लेनेशन।
Reserve Bank of India has issued guidelines called Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Asset (S4A) as an optional framework to manage bad loans. Under this scheme, large ticket loans are restructured by separating a sustainable loan for an unsustainable loan. The lenders are required to make this classification. Sustainable level of debt is one which the bank thinks is stressed borrower can service with its current cash flows. एक बार क्वेश्चन को जाइएगा तो वो मेरे को ए का ऑप्शन थोड़ा देखना है। हाँ, उसी जो कहा इकोलॉजिकल, हाँ, और गलती नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर जगह सस्टेनेबल को इकोलॉजी से नहीं जोड़ना है। मेरे थोड़ा गलती में। हाँ, अभी कोविड के अंदर भी बहुत सारे लोनों का रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बोला था इन लोगों ने, तो आई थिंक इस पे थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आई थिंक स्टॉप्ड है ना कि लोन को नहीं करेंगे एनपीएल, ऐसे में वन अभी एनपीएल नहीं करेंगे, करेक्ट। देन आता है बेसल नॉर्म्स एंड कैपिटल एडिक्वेसी। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Capital adequacy ratio is the amount that banks have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that the bank incur if the account holders fails to repay dues. CAR is decided by each individual bank. ये बताओ। आई थिंक फर्स्ट तो इसमें First- सही है। Yes. सही लग रहा है, मतलब And- नाम से। बाकी तो सेकंड सही नहीं है बिकॉज आरबीआई डिसाइड करता है सीआर कितना होगा। आई थिंक इंडिया में अभी 9% कर रखा है इस चीज। राइट, तो 48 का ये होना चाहिए। वो अलग से रखते हैं सीआरआर, जो भी क्या कहते हैं, सीआरए, CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और एक CAR होता है ना, वो सेम ही चीज होती है, सेम ही चीज होती है। है ना। हाँ, सेम ही है। तो ये देख लो, ये आंसर था। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल in relation to the risk weighted asset and current liability. It is measured as tier 1 capital plus tier 2 plus tier 3 capital funds divided by risk weighted asset. The risk weighted asset take into account credit risk, market risk and operational risk. Okay, इन सबको ऐड ऑन करके डिवाइडेड बाय द टोटल कैपिटल फंड, तो उससे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकल के आएगा। It is decided by central bank and banks regulated to prevent commercial bank from taking excess leverage and becoming insolvent in the process. Okay. तो बहुत सारे, जैसा आई थिंक बेसिल नॉर्म्स के अंदर ये रिकमेंडेशन था कि CAR होना चाहिए, और उसी रिकमेंडेशन को फुलफिल करने के लिए आरबीआई ने भी ये इम्प्लीमेंट कर दिया है। आई थिंक उसके अंडर 8% था बेसिल के अंडर, आरबीआई ने इसको 1% हायर साइड पे रखा है, 9% रखा। और किसी को कोई इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर? एक सेकंड, वापस लास्ट लाइन रिपीट करना, आरबीआई और बेसिल का। मतलब बेस जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था ना, तो उसमें बैंक्स फेल हो गए थे, उसी चीज को एड्रेस करने के लिए बेसिल ने ये रिकमेंडेशंस दिए थे। तो उसमें CAR मेंटेन करना होता है, तो उनका रिकमेंडेशन था 8% का, और आरबीआई ने उसको 1% हायर साइड पे रखा है, 9%। ओके, थैंक यू। शक्तिमान ये बता रहा है कि इंडियन बैंक्स हैड टू अचीव दिस बाय 1 अप्रैल 2021, बट नाउ इट हैज बीन पोस्टपोन्ड टू अक्टूबर 1, 2021। मतलब टाइम लिमिट भी दे रखा था कि कब तक इससे के अंदर लिमिट्स के अंदर फॉल करना है। इसके अलावा कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी था, और एक और कोई टर्म था ना, जो एक और चीज थी बेसिल के अंदर, कैपिटल कंजर्वेशन बफर था, और एक शायद साइक्लिक कुछ था, याद है क्या किसी को? कैपिटल ये वाला क्या था, कंजर्वेशन बफर वो है क्या, मतलब कुछ मनी रखना पड़ेगा, लाइक CSR? CSR मतलब नहीं, देख लेते हैं, सारे कवर कर। देख लूंगा। काउंटर साइक्लिकल बफर का है। हाँ, काउंटर साइक्लिकल बफर।
Basel III norm. What are these norms? Basel 1 हो गया, Basel 2 हो गया, Basel 3 important अपने लिए. In 2010, Basel 3 guidelines were released in the backdrop of financial crisis of 2008. The guideline aimed to promote a more resilient banking system by focusing on four vital banking parameters: capital, leverage, funding, liquidity. Okay. The capital adequacy ratio is to be maintained at 12.9. The minimum tier 1 capital ratio and minimum tier 2 capital ratio have to be maintained at 10.5 and 2% of the risk weighted asset respectively. In addition, banks have to maintain a capital conservation buffer of 2.5%. Counter cyclical buffer is also to be maintained at 0 to 2.5%. मेन कहाँ कर रखा है इसने? काउंटर साइक्लिकल बफर का मेंशन कर रखा है. फॉलोइंग Basel III norms, central bank specified certain capital adequacy norms for banks in country. The CCB is a part of such norms and is calculated as a fixed percentage of bank's risk-weighted loan book. The respect in which CCB differs from other forms of capital adequacy is that it works to help bank counteract the effect of downturn or distressed economic condition. With CCB, banks are required to set aside a higher portion of their capital during good times when the loans are growing rapidly, so that the capital can be released and used during bad times when there is distress in the economy. Although RBI has proposed CCB for Indian Bank in 2015 as part of Basel III requirement, it hasn't actually required the CCB to be maintained, keeping the ratio at 0% ever since. This is based on RBI's review of credit GDP gap, the growth in GNPA, gross non-performing asset, the industry outlook assessment index, interest coverage ratio, and other indicator as part of the first monetary policy of financial year. बेसिकली ट्रिपल सी बी जो है ये काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, इसके अंदर ये बोल रहा है कि बाकी जो लोन्स, बाकी जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स थे ना, उससे डिफरेंट इस तरीके से है कि यहाँ पे बैंक को बोला गया है कि जब अच्छा टाइम चल रहा है, मतलब जब लोन्स अच्छे चल रहे हैं, तब आप थोड़ा कैपिटल बचा के रखो, और जब बैड टाइम में थोड़ा डिस्ट्रेस होता है इकोनॉमी में, वहां पे इसको यूज करो. Just like we do in the piggy bank type of thing, like मतलब थोड़ा थोड़ा निकाल के रखो. करेक्ट. तो ये चीज था. और ट्रिपल सी बी, इसके लिए भी अभी आरबीआई ने कोई नॉर्म नहीं लाया है, और सीएआर के लिए हमने देख रखा है, सीएआर के लिए नॉर्म है. नहीं है इसके अंदर तो. देन आता है Basel 3 Accord, or simply Basel 3, often seen in news, seeks to develop national strategies for the conservation and sustainable use of biological diversity, improve banking sector ability to deal with financial and economical stress, and improve risk management. तीसरा है reduce the greenhouse gases emission but place a heavier burden on the developed countries. हाँ, चौथा भी है. हाँ, transfer technology from developed countries to poor countries to enable them to replace the use of chlorofluorocarbons in refrigeration with harmless chemicals. बी है ना? बी है, ये पढ़ी लिया है, कोई देख लेते हैं ऊपर. ठीक है, कोई पढ़ दो यार एक बार इसको फटाफट. BSP guidelines refer to broad supervisory standards formulated by group of central banks called the Basel Committee on Banking Supervision. The set of agreement by the BCBS
which mainly focuses on risks to banks and the financial system, are called Basel Accord. Basel is the city in Switzerland, sorry मैंने Germany बोल दिया, which is also the headquarters of Bureau of International Settlements. The purpose of the accords is to ensure that financial institutions have enough capital on account to meet obligations and absorb unexpected losses. Basel III. In 2010, Basel III guidelines were released. These guidelines were introduced in response to the financial crisis of 2008. Basel III norms aim at making most banking activities such as their trading book activities more capital intensive. The guidelines aim to promote a more resilient banking system by focusing on 4 vital banking parameters, which is capital, leverage, funding and liquidity. इसमें बाकी भी ऑप्शन एक बार वो देखो। इसको फ्लोरो वाला तो बेकार था। नहीं बेसल जो है वहां पे सिटी में और कोई एनवायरनमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है तो वो कंफ्यूज करने के लिए शायद ये दिया है ऑप्शंस इकोलॉजी वाले। वो हैजार्डस वेस्ट वाला है ना कि इधर नहीं हाँ हैजार्डस वेस्ट वाला कोई है। बेसल हाँ बेसल में है। According to Basel norms only ना we had to change ये vehicles का भी Basel 4 norms I think that is for vehicles. भारत स्टैंडर्ड्स है ना वो तो। हाँ भारत स्टेज 4 कुछ भी है, भारत स्टैंडर्ड्स BS4 BS5 4 से 6 पे सीधा जंप करा है इंडिया। हाँ but so I'm sorry. इसके ऑप्शन ये डी वाला कौन सा है? ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री टू पुअर कंट्री टू एनेबल देम टू रिप्लेस यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन रेफ्रिजरेटर। आई थिंक ये तो वो है ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ। एक CFC है और एक HFCs के लिए भी है ना, 2 है ना? वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही है CFCs के लिए और फिर फर्दर उसमें किगाली अमेंडमेंट किया गया था क्योंकि HFCs जो थी वो उसका ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल ज्यादा था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो था वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है CFC, ठीक है, तो उसको सेव करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ओके, तो CFCs is for Montreal and तो पहले मॉन्ट्रियल है उसके बाद किगाली है। मॉन्ट्रियल 1998 है ना? मॉन्ट्रियल नहीं मॉन्ट्रियल 1985 है। 85 है और किगाली अमेंडमेंट 2010। किगाली कहाँ है? अफ्रीकन कंट्री है ना? केनिया। जापानीज है। केनिया, वो क्योटो है यार। एक बार मैं शॉर्ट क्या हुआ था कि क्या था उसका अपना डेवलपिंग डेवलप्ड और 3 में डिवाइड किया था ना उन्होंने। उसके बाद अपना या 2025-28 से था अपना ना बंदा। HFCs के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनके लिए थोड़ा और लेट कर रखा था। हाँ एक बार ईयर में चेक कर लूं कि गाली का हमने श्योर खुद भी 85% प्रोड्यूस करना था शायद। बाजू वाले ने बहुत बड़ा दे रखा है यार। गाली अमेंडमेंट इन इंडिया ये बोलो। ये रखने जरूरी है क्या, वो जो ईयर वाला? मतलब इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट हाँ याद रहे तो बढ़िया ही है। आंसर्स में बेटर दिखेगा अगर आप लिख सकते हो तो ये। बाकी हाँ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो जरूर याद रहना चाहिए क्या था उसका। नहीं क्रोनोलॉजी क्वेश्चन भी तो कभी कभी आ ही जाते हैं इन लोगों के प्रीलिम्स में। अगर इस तरह दे दिया कि किगाली का हाँ क्रोनोलॉजी आएगा वो
वो आते ही है हर बार, क्योंकि यूनियन होम मिनिस्ट्री का फेमस डायलॉग तो सबको पता होगा, तो याद। डेट्स का बहुत दिक्कत है भाई। अरे हाँ सॉरी, किगाली जो था रवांडा में है। मैं सॉरी, वो केन्या नैरोबी वाला कंफ्यूज हो, यूएनईपी का हेडक्वार्टर। ओके ठीक है, वापस आते हैं यार इस पे। क्वेश्चन नंबर 50। Basel second relates to which of the following: international standards for safety in civil aviation, measures against cyber crimes, measures against drug abuse by sportsperson, international standard for measuring adequacy of a bank's capital. डी D 9% लिखा था ना, 8%। लॉक किया जाए। ओ सॉरी हाँ, D ही है। हम्म, यहीं से पढ़े क्या? Basel guidelines refers to broad supervisory standards formulated by groups of central banks called Basel Committee on Banking Supervisions. नहीं है सर, Okay. पहले वाले क्वेश्चन का ही सारा वो है एक्सप्लेनेशन सेम। आगे बेसल 2 दिया हुआ ना। हाँ वही है शायद। तो यहाँ से पढ़ ले। ठीक है। पब्लिश इन 2004। देन आता है बैंक शुड मेंटेन ए मिनिमम कैपिटल adequacy requirement of 8% of risk asset. Banks are needed to develop and use better risk management techniques in monitoring and managing all the three types of risk, that is credit and increased disclosure requirements. The three types of risk are operational risk, market risk, capital risk. राइट हो गया। वैसे और भी कहाँ था ना, एक कौन से अरे अभी बताया था यार उसने। वो हजार्डस वेस्ट के लिए कुछ रिलेटेड था। हाँ सही, एनवायरमेंट में था। ठीक है। देन आता है मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन. Which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect? Repayment of public debt, borrowing from public to finance a budget deficit, borrowing from banks to finance a budget deficit, and चौथा है creating a new money to finance a budget deficit. ठीक है, सी ना? डी लग रहा है। क्योंकि बी एंड सी सिमिलर हो गया ना, मतलब जो पैसा ऑलरेडी प्रिंट करा हुआ है वही यूज कर रहे हैं, बट डी इज लाइक कि पैसा ही नया क्रिएट कर रहे हैं। करेक्ट। डी, हाँ तो डी होना चाहिए ना इसका आंसर। हाँ लग रहा है। डी लग रहा है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना कुछ दिन पहले शायद, या मेरे को समझा रहे थे कि पैसे ज्यादा प्रिंट होने से बहुत। करेक्ट। 51 का हेलीकॉप्टर मनी यही कंसेप्ट है ना, प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी। इसका हेलीकॉप्टर मनी, हाँ हेलीकॉप्टर मनी का तो मतलब ये है कि बस लोगों में बांट दो, सिंपली प्रिंट करके बांट दो। ऊपर से फेंकने की तरह। शिवाजी पे फिल्म की तरह। करेक्ट ठीक। तो deficit financing always bring inflationary pressure, whatever be the means, but printing of new money has the highest inflationary impact because it increases money supply without any increase in production of goods and services. ये हमने देखा था ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले हुआ था और जर्मनी में भी हुआ था। जर्मनी का जो एग्जाम्पल है इसमें परफेक्ट है वो। क्वेश्चन नंबर 52. Consider the following statements. Inflation benefits the debtors. Inflation benefits the bondholders. Which of the following are correct? Inflation benefits the debtors and inflation benefits the bondholders.
ठीक है, फर्स्ट वाला देखते हैं, इन्फ्लेशन बेनिफिट द डेटर्स, ये सही है क्या? लॉजिक बताओ पहले तो। किसी को सही है गलत तो बोले दो पहले। अरे मेरे को एक कंफ्यूजन है ये वर्ड का मीनिंग क्या है भाई? नहीं, फर्स्ट वाला गलत होगा शायद से। आई थिंक फर्स्ट वाला सही होना चाहिए, क्योंकि डेटर जो होता है ना वो उधार लेने वाला होता है, ठीक है। somebody was taken the loan, ठीक है। तो मैंने किसी से लोन ले लिया, अब इन्फ्लेशन हो गया, तो मैं उसको जो पैसा देने वाला हूँ उसकी मॉनेटरी वैल्यू कम है। करेक्ट। हाँ हाँ, बराबर। एज अ डेटर मेरे को फायदा हो रहा है और क्रेडिटर को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसको जो पैसा मिल रहा है उसकी बाइंग कैपेसिटी या बाइंग कैपेसिटी जो है वो कम है उस अमाउंट की। आई थिंक फर्स्ट सही होना चाहिए। मतलब पैसा लिया है तब इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से पैसा चुकाएगा, यही ना? मतलब उसको पैसा इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से नहीं चुकाना। मैंने अगर सपोज आपसे 100 रुपीज लिए और आपने बोला कि मेरे को 10% ब्याज के ऊपर 1 साल बाद 110 रुपए दे देना, ठीक है, ये आपने मेरे को बोला। और 10 साल बाद हम देखते हैं कि 1 साल बाद हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। सपोज कोई पेंसिल जो 100 रुपए की आती थी अब वो 110 रुपए की आ रही है। अब मैंने आपको 110 रुपए दिए, तो एक तरीके से आपकी जो मनी की कैपेसिटी है ना, जो चीज आप 100 रुपए में तब खरीद सकते थे, आज वो आप 110 रुपए में खरीद रहे हो, ठीक है। तो आप एज ए क्रेडिटर आपको नुकसान हुआ है और मी एज ए डेटर मेरे को फायदा हुआ है। ओके, तो पहला वाला गलत, नहीं, दूसरे में आता है। पहला वाला सही है भाई, सही है। दिन खराब चल रहे, ठीक है ठीक है। सेकंड वाले का कोई बताओ, इस पे सही है गलत है? मतलब ये बॉन्ड होल्डर्स क्या होता है? सही हो गया ना? सही है ना? बेनिफिट मतलब मैंने बॉन्ड खरीदा और मैंने उसको पैसे दिए, मतलब आगे वाली पार्टी को, और उनकी तरफ से बॉन्ड लिया, तो वो जिनके पास तक बॉन्ड है वो बॉन्ड होल्डर्स, दे विल बी एट लॉस ना। मतलब बाइंग कैपेसिटी तो उनका, जब पैसा वापस आएगा बॉन्ड का मनी जितना फेस वैल्यू है उतना ही मिलेगा ना। दे विल बी एट लॉस, जैसे अभी संजय ने बताया। दूसरे बोल सकते हैं ना। शेयर होल्डर और बॉन्ड होल्डर दोनों अलग होते हैं। हाँ, शेयर होल्डिंग अलग होता है, बॉन्ड होल्डर से अलग होता है। आई थिंक बॉन्ड होल्डर भी तो एक तरीके का क्रेडिटर ही हो गया ना। हाँ, मैंने बॉन्ड के बेसिस पे लिया, मैंने बॉन्ड के बेसिस पे लिया, मैंने आपको पैसा दिया ना, तो इन दिस सिचुएशन आई एम अ क्रेडिटर, ठीक है। तो अगर हम मतलब ऊपर वाला ट्रू है तो ऑटोमेटिकली सेकंड वाला फॉल्स हो जाएगा ना। बराबर है। मैं बोलूं? हाँ सही बोल रहे हो। बॉन्ड ना एक अमाउंट पे मिलता है कि इतना इतना, मतलब उसका बॉन्ड यील्डिंग रहेगा। तो उस हिसाब से अगर इन्फ्लेशन चला और हमको उसी रेट पे आगे पैसा मिलता है, लाइक अभी जैसे 5% चल रहा है, तो और धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा तो वो हमारा जो अमाउंट होता जाता है, मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बोलते हैं ना कि प्राइस जो है वो बढ़ जा रहा है, तो हमको उतना तो परचेजिंग पावर हमारा रह नहीं जाएगा। तो उस वजह से जो बॉन्ड होल्डर्स रहेंगे उनको एक तरीके से बेनिफिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था ना, जितना उसका यील्डिंग होना चाहिए था उस बॉन्ड को खरीदने के बाद, वो नहीं हो पाएगा इन्फ्लेशन के कारण, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको हैम्पर करेगा। जितना उसको मिलना चाहिए था बट इंटरेस्ट उसको नहीं मिल पाएगा, ऐसा कुछ है अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, यही सब लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक, आंसर दिख रहा है 52 का। चलो सही हो गया 52 का ये, ठीक है। कोई एक्सप्लेनेशन पढ़ दो यार। इन्फ्लेशन इज द जनरल, एक सेकंड उसको पढ़ने दे विथिका को। ठीक है। Okay, inflation is the general increase in the prices and in price and fall in the purchasing value of money. वही जो बोला था कि वो लेस हो जाता है। Inflation decrease the value of money over time. Money loses the value when it loses the value when it lost the value when it comes to purchasing power falls. Inflation harms the creditors as they lose in real terms. It is because the money they get paid back
has less purchasing power than the money they loaned out. Inflation benefits the debtors as they gain in real terms. Inflation reduces the value of money, and interest rate that a borrower pays is effectively lower thanks to the to inflation. Effectively lower thanks to the inflation. तो वही अपोजिट सीन हो जाता होगा क्योंकि उसमें इंटरेस्ट पक्का रहता है तो यील्डिंग के अकॉर्डिंग मिलता है तो परचेजिंग वैल्यू कम हो जाती है और सेकंड में जैसा संजय ने बोला था वैसा हमारा वैल्यू वो हो जाएगा। आगे ना सबको समझ में, किसी को डाउट तो नहीं है ना इस पे? हाँ समझ में। ओके 53 शाश्वत जी पढ़ लीजिए क्वेश्चन। So, a rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to the base effect. What is base effect? So your options are: it is the impact of drastic deficiency in supply due to failure of crops. It is the impact of the surge in demand due to rapid economic growth. It is the impact of the price level of previous year on the calculation of inflation rate. And none of the statements A, B, C given in the above are correct in this context. आई थिंक सी होना चाहिए क्योंकि लग रहा है। बेस लेवल जो बेस लेवल जो कैलकुलेट होता है प्रीवियस डेटा के हिसाब से होता है। तो आई थिंक सी होना चाहिए। बाकी लोगों को भी सी लग रहा है ना, या कोई किसी को कुछ हाँ, और लग रहा है? सी ऑलराइट, किसी का सी। कोई रीड करेगा एक्सप्लेनेशन? मैं करता हूँ। The base effect refers to the impact of the rise in price level, that is last year's inflation, in the previous years over the corresponding rise in price levels in the current year, that is current inflation. If the price index has risen at a high rate in the corresponding period of the previous year, leading to a high inflation rate, some of the potential rise in is already factored in. Therefore, potential rise is okay. Therefore, similar absolute increase in the price index is the current year will lead to a relatively lower inflation rates. Example, if inflation in March 2018 was 8% and absolute increase in price index in March 2019 was say 9%, then the inflation in March 2009 will be low, that is by 1%. On the other hand, if the inflation rate was too low in the corresponding period of the previous year, even a relatively smaller rise in the price index will arithmetically give a high rate of current inflation. Example, थोड़ा ऊपर की स्क्रॉल कीजिए ना संजय। Example, if inflation in March 2018 was 1% and absolute increase, थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए भैया। अरे वो जूम इन कर और ऊपर कर, आई थिंक उससे देखो दिखने लगेगा। हाँ वही कर बैठा है। हाँ अभी दिख रहा है। Example, inflation in March 2018 was 1% and absolute increase in price index in March 2019 was say 4%. Then inflation in March 2019 will be low, that is 3%. ओए बच्चे का आवाज मेरे से नहीं आ रहा है, ठीक है? मेरे को बस कोई म्यूट ना कर देना, ठीक है? मेरा वाला सो गया है। ठीक है, ओके। ये समराइज कर दोगे क्या था ये पूरा बेस इफेक्ट का ये फंडा एग्जांपल देखने? मेरे को ठीक से समझा नहीं भाई, सिर्फ इतना समझा है कि बेस परसेंट जो होता है वो लास्ट ईयर का डेटा से कैलकुलेट होता है, ठीक है? तो लास्ट ईयर का जो बेस है 8% था अगर मान के चलिए, और अगर नेक्स्ट ईयर में जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अगर वो 9% रहता है तो उससे क्या होता है कि जो इस साल का ग्रोथ है वो स्लो काउंट किया जाएगा क्योंकि उसमें 1% का डिफरेंस आ रहा है। मतलब इसको हाँ, इसको मल्टीपल एग्जांपल्स में देख सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अभी जीडीपी जो ग्रोथ बता रहे हैं हम लोग, तो कह रहे हैं कि इंडिया जो है डबल डिजिट जीडीपी में जा सकता था। मतलब अब पहले बोल रहे थे, अभी का तो पता नहीं, तो पहले जरूर बोल रहे थे। वो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारा जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है? तो सपोज लेट्स से हमारा जीडीपी पहले 11 था, ठीक है?
सॉरी पहले 10 था और अब 15 पे आ गया, तो 50% का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन अब हमारा जीडीपी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होके वो 10 से 5 हो गया, और 10 से अगर अब इस 5 से वो 15 पे जाता है तो जो परसेंटेज आएगा ना ग्रोथ का, वो बहुत ज्यादा हाई आएगा। क्यों? क्योंकि जो बेस है वो कम है। उसी तरह का इन्फ्लेशन में क्या है कि अगर प्रीवियस ईयर में इन्फ्लेशन ज्यादा रहा है, तो अगर नेक्स्ट ईयर में हम उससे इन्फ्लेशन निकालेंगे तो वो इन्फ्लेशन कम आएगा, ठीक है। क्योंकि कमोडिटीज का रेट पहले ही महंगा था और थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ है, तो उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये एक तरीके से बेस इफेक्ट है कि अगर लास्ट ईयर कमोडिटीज का प्राइसेस काफी लो रहा है, तो इस बार थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट होता है कमोडिटीज के प्राइसेस में, तो जो इन्फ्लेशन है हमें काफी ज्यादा दिखेगा। ये बेस इफेक्ट है। समझ में आ गया ना सबको? हाँ भाई। Then आते हैं question number 54. A rise in the general level of prices may be caused by an increase in the money supply, a decrease in the aggregate level of output, an increase in the effective demand. 1 2 तो सही है लग रहा है। Eliminate one ना? क्यों? मनी नहीं, सप्लाई बढ़ मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन वो मतलब रेट वैल्यू तो उतना ही रहेगा ना उसका, और मनी सप्लाई होगा मतलब जो कमोडिटी का वैल्यू है वो मनी के इसमें मतलब कंपैरिजन में वो कम हो जाएगा, मनी का वैल्यू कम हो जाएगा, कमोडिटी का वैल्यू उतना ही रहेगा। नहीं, अ जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस में बी कॉज्ड बाय इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ठीक तो है। हाँ सही पे है। पैसा बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। हाँ, मतलब मार्केट में पैसा आ जाएगा लोगों के पास, तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, तो डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस हैं कमोडिटीज के वो भी बढ़ जाएंगे। जिन जिन लोगों ने मृणाल का देखा है वो याद कर लो, ओनियन वैसे के वैसे ही है, लेकिन पैसे बढ़ गए, नोट्स बढ़ गए मार्केट। हाँ मतलब मनी का वैल्यू बढ़ गया बट कमोडिटी का वैल्यू उतना ही है, तो कंपैरिजन में अगर देखेंगे कमोडिटी का वैल्यू बढ़ गया, कमोडिटी का वैल्यू बढ़ गया, ठीक है, वही इन्फ्लेशन होता है। सेकंड है अ डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, ये भी ठीक है ना? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ना। हाँ, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, करेक्ट। सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट हो गया ना, तो कमोडिटी पहले ही क्वांटिटी में कम है, जब क्वांटिटी में कम है तो ऑटोमेटिकली डिमांड तो उतनी ही थी जितनी पहले थी, लेकिन क्वांटिटी कम हो गई तो फिर प्राइस राइज हो जाएगा। नेक्स्ट इज एन इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, डिमांड में इंक्रीज, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। करेक्ट करेक्ट, तो फिर तीनों सही है इसके अंदर। पहले वाले को क्या बोलते हैं, कुछ नाम है क्या इसका? ये तो जनरल इन्फ्लेशन ही हो गया, ऐसा तो नाम तो नहीं है। ये शायद हाइपर इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है। नहीं जरूरी नहीं है। हाइपर इन्फ्लेशन तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होगी, जनरल सेंस में भी हो जाता है। अगर हमारे आरबीआई ने बैंक रेट्स को कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, तो वहां पे कमोडिटीज का जो प्राइस है थोड़ा राइज हो सकता है, ठीक है। आई थिंक सब लोग एग्री कर रहे हैं कि डी है, तो अपन इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो बोला कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, और थर्ड था डिमांड पुल। कॉस्ट भी वैसे डिमांड वाला ही है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी उसके बाद में। हाँ, कह सकते हैं। 54 का डी, कोई पढ़ दो यार सोल्यूशन। पढ़ दो फटाफट। Increase in the supply of money leads to more spending and debt. This leads to a steady increase in demand, which means higher prices. Hence, statement 1 and 3 are correct. A decrease in the aggregate level of output is majorly due to rise in production cost. This leads to price rise and inflation. Hence, statement 2 is correct. Right. Next पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55. Supply of money remaining the same when there is increase in demand for money. There will be a fall in the level of prices, an increase in the rate of interest, a decrease in the rate of interest, and increase in the level of income and employment.
बी या सी में से कुछ होगा ना? शायद बी होगा। डिमांड बढ़ गई है पर सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली रेट बढ़ेगा ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ा देंगे तभी तो लोग कम पैसा सोचेंगे कि यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कहाँ अपने को फिजिबल नहीं रहेगा, अफोर्डेबल नहीं रहेगा। तो आई थिंक बी होना चाहिए। सही है, अच्छा लॉजिक है। एक बार मेरे को तो यार क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई समझाएगा वापस क्या क्वेश्चन है ये? अरे मतलब जो मार्केट में मनी पुश किया गया है वो सेम है, पर जो लोगों का लोन उठाने का जो डिमांड है, मतलब 10 लोग मांग रहे हैं तो डिमांड आगे चल के जो है बढ़ गया है, मतलब 15 लोग मांग रहे हैं लोन ऐसा, और मनी उतना ही रह गया है। ठीक है सही है। थैंक आई थिंक फिर तो बी होगा ना इसका आंसर। बिल्कुल बी होगा भैया। ओके दादाजी, 55 का बी है। सप्लाई 2000 रिमेन रुपए, supply remaining the same, increase in demand for money will lead to more options to lend money for the banks. Thus, bank will lend money at greater rate of interest to earn more money as there are more customers for the same amount of money. Hence, statement B is correct. नेक्स्ट। Then आता है the current price index base 1960 is nearly 330. This means that so all items cost three times more than what they did in 1960. The price of certain selected items have gone up to three times. The weight mean of price of certain items has increased three times. 330. Gold price has gone up three times. एक बार दिखाना फिर से क्वेश्चन यार। का CPI The बोल current रहा price है index base 960 is nearly 330. This means that item cost. ये 3 टाइम्स क्या है, मतलब 3-3? वो कह रहा है भाई वही ना, 100 होगा तो 300 को 3 टाइम्स बोल रहा है, लग रहा है मुझे ऐसा। बट 3 टाइम्स क्यों लिख रहा है? सिंपली 3 टाइम्स लिख देगा, लॉजिक क्या है इसका? आवाज आ रही है मेरी? बी लग रहा है हाँ ना इसमें, 3 3.3 तो नहीं है, 3 उसने कहीं कॉपी नहीं कर पाया सही सही से शायद। हाँ राइट। क्या देखो, लेकिन अभी ए एंड बी ऑप्शन तो सिमिलर लग रहे हैं, इसमें ऑल आइटम तो नहीं होगा, सिलेक्टेड आइटम होगा। हाँ एवरेज ही होता है, सीपीआई एवरेज। सर्टेन बास्केट ऑफ आइटम्स का ही होता है ना। आई थिंक ऑल आइटम्स शायद कहना गलत ही रहेगा, सही बोल रहा है अक्षर। एक दो चीज होती है ना इसमें, एक तो होता है करंट प्राइस और एक कांस्टेंट प्राइस, तो उसका कुछ रिलेशन होता है इससे? डी ऑप्शन क्या है? वो तो गोल्ड गोल्ड प्राइस है। आंसर देखिएगा तो या बी या फिर सी में से होगा, बी लग रहा है ज्यादा, तो पता नहीं। ये क्वेश्चन था 56, तो 56 का सी आंसर है। वेटेड मीन ऑफ प्राइसेस ऑफ सर्टेन कमोडिटीज एंड इंक्रीज 3 टाइम्स। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। A price index is normalized average, typically a weighted average of a price relative for given class of services or goods or services in the given region during a given interval of time. It is a statistic designed to help compare how these prices relative taken as a whole differ between the period time or geographical location. The current CPI is base 1960 is nearly 330 times, which implies that the price if weighted mean of the price of certain item has increased 3.3 times. तो दादाजी सही कह रहे थे, वो 3.3 था, वो डैश नहीं था। 3.3 था। 3.3 था वो पूरे क्वेश्चन में। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट चलते हैं। ये वेटेड मीन का मतलब वही हुआ ना कि उस वक्त अगर 2 किलो वो थे तो
प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी 2 किलो कितने के आ रहे हैं और कितना उससे इन्फ्लेशन चेक किया है। वेटेड में होता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज का अगर तुम मान रहे हो तो सबके कंपैरेटिवली वो कितना होता है, तो उसमें वो जो फॉर्मूला बताया ना कि उसमें वही सेम होता है कि मान लो तुम सीटी का कर रहे हो तो सीटी डिवाइड बाय सीओ, मतलब वो सबका है। सीओ में सबके सारे जो आपके कमोडिटीज है वो सारे इंक्लूड होते हैं, तो उस एक पर्टिकुलर के कंपैरेटिवली वो उसका मतलब होता है वेटेड। हाँ, तो एक सेकंड, सीटी और सीओ क्या है? हाँ, तो मुझे लगता है सीटी इज द पर्टिकुलर प्राइस ऑफ दैट commodity and CO is the combined prices of all the commodities. I'm not sure, राहुल से एक बार कंफर्म करो। आई मीन फुल फॉर्म क्या था? ओके, राहुल ऑनलाइन है, चला गया? लाइब्रेरी में आवाज को क्या हुआ भाई? सीटी इज मार्केट प्राइस। हाँ सही थे तुम, ठीक है। नेक्स्ट, राइज इन जनरल ये कौन सा? कंसीडर 57। Consider the following statements: currency with the public, demand deposit with bank, time deposit with bank, which are included in the broad money M3 in India. M3 क्या है भाई? ब्रॉड मनी। ब्रॉड 4 अरे तरह के भाई, मनी होते हैं, M1, M2, M3 और M4। नॉर्मली थर्मोडायनामिक्स की याद दिला दी है। M0 भी होता है ना, हाई पावर्ड मनी। M0 हाँ, M3 नॉर्मली यूज करता है आरबीआई टू मेजर। तो अगर M3 की बात करें तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे? M1 प्लस क्या होता है? करेंसी तो आएगा ही, करेंसी आएगा। करेंसी तो सब में। लेकिन सेविंग्स बैंक पूरा आता है, जहाँ तक मुझे याद है ना, बैंक पूरा आता है उसमें, टाइम एंड आई गेस दोनों तीनों आएंगे, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स। करेक्ट करेक्ट। M3 के लिए, ब्रॉड मनी के लिए तीनों ही कंपोनेंट आते हैं। ये याद कब होगा? एक कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है M3 में? हाँ, ये देख लेना ना, आंसर में मिल जाएगा अपने को। रिजर्व मनी, M0, it is also the high powered money, monetary base money, etc. M0 is equal to currency in circulation plus bankers deposit with RBI plus other deposits with RBI। ठीक है, तो बैंकर्स ने डिपॉजिट करा आरबीआई के पास और अदर डिपॉजिट, इट इज द मॉनेटरी बेस ऑफ आवर इकोनॉमी। देन नैरो मनी, नीति शायद आपके माइक से वो हो रहा है। फिर है M1 नैरो मनी, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। इसमें वो टाइम डिपॉजिट वाला नहीं है। देन M2 is equal to M1 plus saving deposits of post office saving bank। Then M3 broad money, M1 plus time deposits with banking system। Okay. Finally M4, M3 plus all deposits with post saving bank। अरे कोई टेबल होती है ना, उसमें वो अच्छा वो हो जाता है याद, मतलब कि ब्रॉड मनी में M3 और M4 दोनों ही आते हैं ना। एक टेबल जो टिक मार्क वाली कहीं देखी थी मैंने, शायद मुनाल में ही था कहीं शायद, मृणाल हाँ, ने डाल दिया। मृणाल की है। उसको मृणाल दिमाग का में है, करना पड़ेगा। मृणाल में दिया हुआ है अच्छे से टेबल। As you move on from M0 to M4, I think M3, M4 में time deposits का element आया है। सेविंग बैंक। Like M0 can be used immediately in the form of currency. पहले में नहीं है, इसमें नहीं है। पेज नंबर पता है क्या किसी को इसमें?
वाटर मनी फंक्शन, आई थिंक पेज 6 पे मिल जाएगा जल्दी। हाँ अरे टाइम लग जाएगा, इस पहले फर्स्ट हैंडबुक में नहीं है। आगे चलते हैं, बाद में कोई डाल देगा ग्रुप में। हाँ मैं डाल देती हूँ। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। ऐसे जो लिखा है वही है, वो मतलब सेम ही कंसेप्ट तो। हाँ लिखा तो वही है, मतलब वो टेबल कह रहा था ना, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं टेबल निकालने की कोशिश कर रहा था। अरे सिंपली कंट्रोल F करके M0 करो, शायद वो ले जाएगा आपको टेबल पे। यार वो 0 वाला उसने अलग दिया, पता नहीं कैसे। 31 पेज नंबर है ना इसका, वो निकाल लो। इस पे तो वापस इंडेक्स फिर हो गया है। अरे M0 टाइप कीजिए वापस हाँ, यही है। ये आ गया। ठीक है। तो नैरो मनी M1 है, करेंसी विद द पब्लिक। फिर है डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है M2, जिसमें है करेंसी विद द पब्लिक। इसमें डिमांड डिपॉजिट्स भी है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और डिमांड डिपॉजिट विद ऐसे, मतलब पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक वाले भी इंक्लूडेड है, ठीक है। M3 में आता है करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक एंड टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, जो FD RD फिक्स डिपॉजिट वगैरह रहता है। M4 में है इस M4 में सब है, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो M3 में सिर्फ कमर्शियल बैंक और करेंसी वाला एस्पेक्ट रहता है, बट M2 में डिमांड डिपॉजिट जो सेविंग अकाउंट वाला कंपोनेंट है वो रहता है M2 में। इसकी लिक्विडिटी ऐसी है कि जैसे हैंड में नैरो मनी में M1 में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, मतलब अपन डिमांड डिपॉजिट है, कभी भी करंट अकाउंट से पैसे निकाल और कर सकते हैं। और वही अगर सबसे लास्ट में देखा जाए, क्योंकि इसमें सेविंग बैंक वाला कंपोनेंट भी है, तो मुश्किल होता है FD तोड़वाना वगैरह, तो इसकी लिक्विडिटी कम है। और क्वांटिटी सबसे ज़्यादा लास्ट वाला में है, क्योंकि मोस्टली पीपल इंडियन इकोनॉमी सेविंग में ज़्यादा बिलीव करती है, तो वो FD वगैरह बनवा के रखते हैं। और सबसे क्वांटिटी कम इसकी इसलिए है क्योंकि CU में नॉर्मली बिजनेसेस के लिए यूज़ करते हैं करंट अकाउंट वगैरह, तो क्वांटिटी वहाँ सबसे कम है। ठीक है, तो आई थिंक यहीं पे स्टॉप करते हैं आज का, और अब वो देख लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे। तो आज अपने को इसमें करना था, चैप्टर 3 करना था ना। वही सोवरेन क्रेडिट रेटिंग खत्म हो गया था ना। हाँ 5 करना है। अरे हाँ सॉरी, 3rd पे हो गया था कल, आज अपने को 5 करना है। तो बताओ क्या सारांश है सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स का? यार 22। हाँ बस एक ही वर्ड में पूरा आंसर हो कि जाएगा। इंडिया कोई के बात पास अच्छी क्रेडिट रेटिंग नहीं जाती है इंडिया की। हाँ, जब अच्छा हुआ था तब भी नहीं दिया, और जब बुरा हो रहा है तो दम के क्रिटिसाइज कर रहे हैं। प्रो साइक्लिक। हाँ प्रो साइक्लिक। ठीक है, एक एक पैरा सब लोग पढ़ लेते हैं इसमें, ठीक है। ओके, Healthcare takes center stage finally. Chapter signifies importance of the importance of healthcare sector and its interlinkages with other key sectors of the economy. Survey highlights 5 key aspects in this chapter. Health infrastructure must be agile to enable India to effectively respond to future pandemics. At the same time, healthcare policy must not become beholden to saliency bias. What is this kind of bias? Where policy overweighs a recent phenomenon that may represent a Six Sigma event, that is, rare event that may not repeat in any identical fashion in the future. ठीक है,
आई थिंक सेलियंट बाइंस हमने शायद एथिक्स में भी पढ़ा था ना। मुझे तो नहीं याद। पढ़ा था शायद, लेकिन याद नहीं आ रहा है अभी। हाँ, कि मतलब कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, सारा फोकस उसी पे कर देते हैं, और कोई लेस इंपॉर्टेंस की चीज होती है उस पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आई थिंक इस चैप्टर में इस पे शायद ये कहना है कि अभी कोविड-19 पे इतना ज्यादा फोकस है ना कि बाकी सब डिजीज के बारे में सोच ही नहीं रहे। जैसे इम्यूनाइजेशन है उसके बारे में नहीं सोच रहे बच्चों के, तो उन चीजों को भी एड्रेस करने की जरूरत है। आई थिंक शायद ये कहना था इसमें आप। Does anybody know what is Six Sigma event? रेयर इवेंट है ये, एग्जैक्टली तो नहीं पता। So, as far as I know, Six Sigma is something related to disaster, I guess. Event that is extremely rare beyond the 6 standard deviation in a normal distribution, that is Six Sigma event. The probabilities, I think it has something to do with statistics. तो हमारे वो कहाँ है, शानू जी लेफ्ट, आई थिंक वो बता सकता था। शायद जापानीज कॉन्सेप्ट है ना ये। वो आई थिंक प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड था शायद, सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन वाला जो चीज था ना। ओके ओके, आई थिंक दिस इज समथिंग शायद डिफरेंट। ये दिस इज डिफरेंट। ओके हाँ, एक बार मतलब इस पे अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो शेयर कर दूंगा। ओके। हाँ, ये देखो ना, ये आई थिंक ये वाला है, सिक्स सिग्मा इज अ सेट ऑफ टेक्निक फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। आई थिंक वो डिफरेंट है, और ये जो सिक्स सिग्मा जो है हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आई थिंक ये शायद डिफरेंट चीज है। राइट राइट, ठीक है। नेक्स्ट है टेलीमेडिसिन needs to be harnessed to the fullest by especially investing in the internet connectivity and health infrastructure. Emphasis on national health mission should continue in conjunction with Ayushman Bharat, as NHM has played a critical role in mitigating inequity in healthcare access. वो जन आरोग्य योजना इनका मेजर रोल रहा है। एंड इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंड फ्रॉम 1 to 2.5 to 3 of GDP can decrease the out of pocket expenditures from 65 to 30% of overall healthcare spend. Policy इम्पोर्टेंट है ये चीज, मेंस में लिख सकते हैं इसका पॉइंट। So policymakers need to design policies that mitigate information asymmetry in healthcare, which creates market failures and thereby renders unregulated private healthcare suboptimal. Asymmetry को mitigate हटानी पड़ेगी और create a जो भी market failures हो रहे हैं और जो ये unregulated private healthcare है, उन सबको भी optimum utilization करना पड़ेगा, उनको भी आने की जरूरत है। Survey further shows that there is a need for citizens to have access to equitable, affordable and accountable healthcare system, highlighting about the Indian healthcare system in context of recent COVID pandemic. यार एक सेकंड, जैसा इंडिया मतलब 1% करता है हेल्थ पे, एंड आई थिंक 2-3% एजुकेशन पे कर रहा है, तो ये जो 100% अमाउंट आता है उसमें करता क्या है जीडीपी का, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर? बहुत सारे है ना, अलग अलग है। जैसा अगर सबसे बड़ा शेयर देखो अपने बजट के अंदर स्पेंडिंग में, तो सबसे ज्यादा होता है डिफेंस के ऊपर। मतलब अगर हमारा हेल्थ का और एजुकेशन का दोनों का मिला भी लें तो भी उससे ज्यादा डिफेंस पे स्पेंडिंग है, मतलब उससे भी 2-3 गुना ज्यादा डिफेंस पे स्पेंडिंग है। तो दैट्स व्हाई इंडिया टॉप 5 कौन से हैं? टॉप 5 ओके भी दिखाता हूँ। एजुकेशन और इस हेल्थ का तो 10% से ज्यादा नहीं होगा। 10% बहुत ज्यादा बोल रहे हो। 10% तो बहुत ही ज्यादा बोल रहे हैं। वो तो है 2-4% नहीं है तो। ये देखो डिफेंस के लिए देख लो कितना है, इट इज 4,78,196, ठीक है। और आप एजुकेशन के लिए देख लो 93,224, और फिर आप हेल्थ के लिए देखो 73,932, ठीक है। अगर ऑर्डर में प्लेस करें तो सबसे ऊपर हमारा डिफेंस आता है, फिर हमारा कंज्यूमर अफेयर्स आता है, क्योंकि वो फूड ग्रेन्स वगैरह देने होते हैं तो उसमें भी पैसा लगता है, ठीक है। एंड देन होम अफेयर्स आता है। होम अफेयर्स अगेन वही सिक्योरिटी, पैरामिलिट्री और वो। तो अगर टोटल सिक्योरिटी पे देखो तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट हम लोग स्पेंड कर रहे हैं।
तो इंडिया के लिए ये एक तरीके का मतलब कह सकते हैं कि इंडिया के लिए ऐसी सिचुएशन ऐसी है कि इट कैन डू नथिंग बट वो जो डाइवर्ट करना ही पड़ेगा उसको अपने रिसोर्सेज डिफेंस के लिए, क्योंकि सेसेशनिस्ट मूवमेंट या फिर पाक या फिर चाइना से जो अटैक होते रहते हैं या वो जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं उनकी वजह से इंडिया को अपना डिफेंस जो है वो रेगुलरली अपडेट करना रहता है। तो ये एक तरीके से एसिमेट्रिकल वो कह सकते हैं कि कहाँ प्रायोरिटीज हैं हमारी। ये ऑर्डर में ही है ना, नीचे से ऊपर? हाँ, नीचे से ऊपर सबसे हाईएस्ट डिफेंस, देन कंज्यूमर अफेयर्स, देन होम अफेयर्स, देन रूरल डेवलपमेंट, देन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो सबसे लास्ट में देख लो आप, मतलब सेकंड लास्ट और सेकंड थर्ड लास्ट जो है एजुकेशन और हेल्थ है। दोनों साथ में मिला के भी इतना नहीं है। हाँ वही, ठीक है, वापस आते हैं इस पे। So healthcare system and economy relationship. Health affects domestic economic growth directly through labor productivity and the economic burden of illnesses. The relationship can be showed as follows. Increased prioritization of healthcare budget crucially impacts how much protection citizens get against financial hardships due to out-of-pocket payments made for healthcare. मतलब इंक्रीज कर दिया ना अगर हमने हेल्थ केयर के अंदर बजट, ठीक है, तो उसका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, वो चीज कम हो जाएगा लोगों के लिए। जैसे कोई गरीब है तो अगर मतलब वो अगर किसी सिक्योरिटी स्कीम के अंडर कवर्ड नहीं है तो उसे अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा उसके लिए, और वो जो पैसा खर्च करेगा तो हो सकता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में चला जाए। मतलब ऐसे लोग जो अबव पॉवर्टी लाइन थे, जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, वो एक्सपेंडिचर उसमें जो हुआ मतलब जितना भी इलाज के अंदर, उसकी वजह से वो बिलो पॉवर्टी लाइन में चले गए, तो वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो सकता है अगर हम हेल्थ केयर बजट में और उसमें इन्वेस्टमेंट करें। ये आइडिया। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन अ कंट्री correlates positively with per capita public health expenditure. ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी तो पर कैपिटा पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम 50 to 70 years, a 40% increase could raise the economic growth rate by 1.4 percentage points per year. Next step, maternal mortality correlates negatively with increase in per capita public health expenditure. यानी अगर पर कैपिटा इनकम या पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज हो रही है। मतलब अगर मैटरनली मतलब बच्चा अगर पहले ही मर रहा है, मतलब मोर्टेलिटी रेट यहाँ ज़्यादा है, तो पहले हमने पॉजिटिवली में देखा था और अब हम नेगेटिव में देख रहे हैं। तो अगर बच्चा मर रहा है तो पब्लिक पर कैपिटा पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर भी मैटरनल का मतलब वो मदर की डेथ होती है at the time of giving birth. Public expenditure is directly affecting the mortality rate, मतलब it is reducing. Correct, it is reduced, right. Okay. Given significant market failures, healthcare needs careful system design. Survey shows the healthcare systems do not self-organize using the force of free market because of three key inherent and unchanging characteristics, like uncertainty or variability of demand, information asymmetry, and hyperbolic tendencies. तो ये हेल्थ केयर सिस्टम मार्केट फोर्सेस से नहीं चल सकता क्योंकि तीन कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि वेरिएबिलिटी ऑफ डिमांड है कि कभी भी कोई भी बीमार पड़ सकता है, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, और हाइपरबोलिक टेंडेंसीज क्या हो सकता है, आगे बता रहे क्या वो। ओके। तो अनसर्टेनिटी और वेरिएबिलिटी ऑफ डिमांड. Uncertainty lies in the fact that need for healthcare is driven often by the factors that cannot be controlled or predicted. This is also coupled with nature of demand, which is inelastic, especially for emergency care. Next है information asymmetry. In healthcare markets,
Buyers of information, that are patients, rarely know the value of the information until after it is purchased, and sometimes never at all. Like, for example, when individuals avail of a healthcare service like dermatology, that is skincare, they may be able to readily evaluate the outcome. Whereas for some services, such as preventive care or mental health, patients may never know for sure whether their provider did a good job or not. Okay. लाइक स्किन केयर है तो हम देख सकते हैं आउटपुट और इफेक्ट उसका, बट लाइक मेंटल हेल्थ उसमें हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज द सब ऑप्टिमम और आइडल क्या होता है उसमें. When little information is available on the quality of product prior to purchase and the quality of the product is uncertain, then quality deteriorates to the lowest level in an unregulated market. मतलब कोई जैसा अपन बोलते हैं ना कि ये जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे हमने कल बात किया था इंडियन स्टैंडर्ड होता है, तो उसके ऊपर सब चीजें लिखी होती है कि ये आप प्रोडक्ट खरीदोगे, अगर आपने कोई खाने का चीज खरीदा है तो इट वुड हैव दिस अमाउंट ऑफ प्रोटीन, दिस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये सब फायदा हो सकता है, ये सब नुकसान हो सकता है, सब लिखा रहता है. बट सेम चीज इज नॉट ट्रू फॉर द हेल्थ केयर प्रोडक्ट. बहुत सारी ऐसी चीजें होती है तो बॉडी के इंटरनल कोई चीज है तो आपको पता नहीं कि ये क्या फंक्शन कर रहा है. जब आपको भी नहीं पता तो एक तरीके से जो सेलर है उसके ऊपर भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता कि वो उसको एकदम करेक्ट करके बताए. तो ऐसी सिचुएशन में वो जो क्वालिटी है वो डिटियोरेट हो जाएगी लॉन्ग टर्म. तो जैसे कई बार कहते हैं ना कि साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाते हैं कुछ मेडिसिन के, आई थिंक वो एक कारण हो सकता है कि वो फिर भी साइड इफेक्ट होने के बावजूद भी वो जो चीजें वो पास ऑन हो जाती है. तो ये कहीं दिखाता है कि क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है ऐसे अनरेगुलेटेड मार्केट. Next है hyperbolic tendencies. People tend to indulge in risky behavior that may not be in their self-interest. For example, smoking, eating unhealthy food, delaying seeking care, etc. Such individual behavior may not be suboptimal for the individual, but also create negative externalities for the entire health system through higher cost or poorer incomes. Negative externality के लिए वो भी है टैक्स इंडिया में. नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मतलब अगर इफ समवन इज स्मोकिंग एंड उसके आसपास कोई खड़ा है तो दे हैव टू फेस द, मतलब उनको भी ये लाइक जो भी स्मोक है उनको वो भी लेना पड़ रहा है. तो दिस इज द नेगेटिव एक बार ये बार ग्राफ थोड़ा और देख लेते हैं अपन. Communicable diseases versus non-communicable diseases. Following the COVID pandemic, a key portfolio decision that healthcare policy must make is about the relative importance placed on the communicable versus non-communicable diseases. So figure shows proportion of communicable and non-communicable diseases. इसमें रेड दिख रहा है ना, ये वाला रेड. Red is for communicable, maternal, neonatal and nutritional disease, and this black is for non-communicable disease. तो ये over the years कम हुआ है क्या? Communicable. ये रेड वाला आप जो देख रहे हो मतलब y एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ डेथ है एंड ये x एक्सिस पे टाइम है. तो ओवर द इयर्स हमारा कम्युनिकेबल डिजीज का जो डेथ रेट है वो कम हुआ है. ठीक है. वहीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है. ठीक है. तो आई थिंक ऑलमोस्ट वाइस वर्सा ही कह सकते हैं चीज को. COVID pandemic has spread worldwide because it is a communicable disease, whereas 71% of global deaths and about 65% of deaths in India are caused by non-communicable disease. Between 1990 to 2016, the contribution of NCD increased 37% to 61% of all deaths. Faced with such a devastating pandemic, even the infrastructure created by greater healthcare spending in the advanced economies could not deal with the disease burden created by the pandemic. जैसे US में भी हुआ ही है deaths uncontrollable. A
positive correlation was observed between total number of cases and death with respect to health expenditure per capita, implying better health infrastructure. Okay. So better health infrastructure is no guarantee that a country would be able to deal better with devastating pandemics like COVID-19. I think US का health expenditure almost 20% है ना? 20%? हाँ. इंडिया नहीं है। यूएस एक कैपिटलिस्टिक कंट्री है। हाँ वैसे यूएसए तो कैपिटलिस्ट है, आई थिंक इतना ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। प्राइवेटाइज है वहाँ पे, बहुत महंगा है वहाँ पे हेल्थ सिस्टम। बहुत महंगा है। महंगा तो है, ठीक है, देखते हैं। As the next health crisis could possibly be drastically different from COVID, the focus must be on building the healthcare system generally rather than specific focus on communicable diseases. यूएस में हेल्थ कवर भी बहुत अच्छा देते हैं, लाइक हर जॉब्स में उनका सोशल सिक्योरिटी कोड के साथ हेल्थ का इंश्योरेंस फिक्स होता है, बट महंगा तो है ही अगर कोई ऐसे इन जनरल जाए तो। नहीं महंगा है करेक्ट, बट उनका जो भी है ना प्राइवेटाइज्ड है पूरा सिस्टम, सो वेयरएवर इट इज प्राइवेटाइज्ड ना कमर्शियलाइजेशन एस्पेक्ट विल टेक इन एंड कॉस्टली हो जाता है, तो their spending is high, 18% है, but it is privatized. The nature is different. That's all. Okay. ठीक है. Hence, any active system design of healthcare must be mindful of these above inherent characteristics. Countries with more fragmented health system tend to have lower performance as reflected in higher cost, lower efficiency, and poor quality. Therefore, in addition to providing healthcare services and financing healthcare, a key role for the government is to actively shape the structure of healthcare market. Indian healthcare currently, the health status of any country crucially depends on available health infrastructure in general and human resources for health. Despite improvements in healthcare access and quality, India continues to underperform in comparison to other low and lower middle income countries. On quality and access of healthcare, India was ranked 145th out of 180 countries. Study है Global Burden of Disease की 2016. Only few sub-Saharan countries, some Pacific islands, Nepal and Pak were ranked below India. I think Bangladesh भी ऊपर ही है. Poor health outcomes. Despite improvement in maternal mortality rate and infant mortality rate, India still needs to improve significantly on these metrics. Countries such as China, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, etc. have improved much more on these metrics than India. Low access and utilization. At 3 to 4%, the hospitalization rates in India are among the lowest in the world. The average for middle income countries is 8 to 9% and 13 to 17% for OECD countries. This is OECD statistics. Low hospitalization rates reflect lower access and utilization of healthcare in India. Low hospitalization reflects lower access and utilization for healthcare in India. Why? लो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है ना, मतलब लोग ज्यादा हॉस्पिटल में जाके एडमिट नहीं हो रहे, तो इसका कहीं ना कहीं ये सिग्निफिकेंस है कि लोगों को शायद वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। सही। एक्सेस भी कम है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है पुअर के अमन तो, मतलब विलेजेस में नहीं मिल पा रही, तो वो सब फैक्टर्स है। Actually, if you see now, earlier they had mentioned one word, hyperbolic tendencies in the chapter. So this is also one of hyperbolic tendencies. Ki people don't take health seriously; they ignore. बाद में they will, once everything happens, then they'll get admitted, like posting. So that is irresponsible behavior, and that is also one of the reasons for low hospitalization rates. Right. इंडिया में ऐसा होता है ना, सब अपने आप में पहले डॉक्टर है. We wait for 2-3 days that हो जाएगा, like बुखार है तो we tend to ignore, फिर जाते हैं हॉस्पिटल में.
और ये भी स्पेशली कोविड के टाइम, क्योंकि उसका इफेक्ट जल्दी देखने को मिलता है कम्युनिकेबल डिजीज का, तो हम उसके लिए ज्यादा प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन उसका मतलब डेथ रेट ज्यादा है। Nice. High out of pocket health expenditure. So India has one of the highest level of out of pocket health expenditure in the world. Comparison करते हैं different regions में. तो मैं European region, African. Population with high health expenditure on health greater than 10% of the total health expenditure or income percent. Population with high expenditure on health greater than 25%. तो इंडिया का एग्जांपल कहाँ है? ये रहा सबसे लास्ट में ना, लास्ट ग्लोबल से इंडिया का पॉपुलेशन विद हाई एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ ग्रेटर देन 10% ऑफ द टोटल। क्या मतलब है? मतलब पुअर लोग ज्यादा हेल्थ पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एज कंपेयर टू हायर इनकम पीपल। मतलब That is what it says, no? Sorry, repeat. हाँ, मतलब ये इसमें यही है ना, लोअर इनकम वाले पीपल जो है वो ज्यादा हेल्थ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एज कंपेयर टू पीपल विद हायर इनकम। But can you say this is lower income and higher income? यस, ये आप देखो ना, कलर लाइट रेड बोलेंगे। हाँ, लेकिन इसमें ये कहा गया है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, लाइक मतलब 1/4 से ज्यादा जो भी सैलरी है उसमें से 1/4 से ज्यादा इतने लोग खर्च कर रहे हैं, और दूसरा बार ग्राफ है 1/10 से ज्यादा इतने लोग खर्च कर रहे हैं, है ना? 1/4, अच्छा हाँ, 1/4 से ज्यादा है। हाँ, कुछ लोग मतलब दिस पिंक बार ग्राफ इज more than 1/4 of their salary they are spending, and the maroon bar graph is more than 1/10 of their salary they are spending. मतलब these people are spending a little less. उतना ही बोल सकते हैं ना? Low income, high income कैसे बोल सकते? I mean, this is a doubt for me as well. That's why I'm asking. This is the same thing, right? When we read about out-of-pocket expenditure, it affects the poor most because they are the most uninsured, as well. बोल सकते हैं ना? So in that sense, people at the bottom ladder, they will spend more on such things. Okay. This is not good actually. Right. आगे क्लियर हो गया। However, recent data show that distribution of public subsidy has improved in favor of the poor, more clearly in maternity and child health care. इतनी सारी पब्लिक सब्सिडी है, जैसे मातृ वंदना योजना, और क्या क्या है, 6,000 मनी देते हैं, आयुष्मान भारत एंड ऑल ऑफ दैट। तो काफी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। In recent times, the percentage of poor utilizing prenatal care through public facilities has increased from 19.9% to 24.7% from 2004 to 2018. And there is similar increase in the percentage of poor accessing institutional delivery as well as postnatal care. Low budget allocations for healthcare. A health is a state subject in India. Spending on healthcare by states matter the most when examining government healthcare spending. According to National Health Accounts 2017, 66% of spending on healthcare is done by states. India ranks 179th out of 189 countries in prioritization accorded to health in its government budget. इससे पहले 145th आउट ऑफ 180 रैंक किस में था? ग्लोबल डिजीज रिपोर्ट, तेरा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2016, तो हेल्थ केयर का रैंकिंग था 145 आउट ऑफ 180 एंड यहाँ पे 179 आउट ऑफ 189, तो मतलब कितना ही खराब है। और तीसरा जो हमने पढ़ा है उसमें इंडिया सबसे हाईएस्ट हेल्थ एक्सपेंडिचर कर रही है, जो ग्राफ में देखा था अपन, तो 3 रैंकिंग्स पढ़ चुके हैं अभी तक।
वन ऑफ द हाईएस्ट है, मतलब एज पर रैंक. Okay, out of pocket expenditure, ठीक है. The state expenditure on healthcare is highly variable across states and is not fully explained by the income level of the state. ठीक है. While healthcare spending per capita increases with the GSDP per capita, healthcare spending as percent of GSDP decreases with the GSDP per capita. अगर हेल्थ केयर स्पेंडिंग इंक्रीज होती है तो जीएसडीपी भी इंक्रीज होती है. No, other ways, no? GSDP is increasing, hence the healthcare is increasing. ठीक है. Does the richer states Does the richer states are spending a lower proportion of their GSDP on healthcare? ये तो देख ही लिया. The states that have higher per capita spending have lower out-of-pocket expenditure, which also holds true at global level. Hence, there is need for higher public spending on healthcare to reduce out-of-pocket expenditure. Okay. An increase in public spending to 2.5 to 3% can substantially reduce out-of-pocket expenditure from current level of 60% to 30%. Therefore, the richer states should especially target increasing the healthcare spending as a percent of GDP to 2.5 to 3%. I think especially in the COVID context, if you observe, many people they're not able to bear the burden of the this treatment cost. They're selling their land, to be salary in Mangalsutra, everything there. They were, if you remember, they were spending. So that is the level of out of pocket. Many tell that out of pocket expenditure even crossed beyond their ability to spend on health. In such case. मतलब इसका कंक्लूजन यही है कि हेल्थ केयर स्पेंडिंग इंक्रीजेस विद पर कैपिटा द ग्रॉस डेवलपमेंट जीडीपी ऑफ द स्टेट, ठीक है, लेकिन इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन टर्म्स ऑफ द स्टेट व्हिच आर हैविंग हायर जीएसडीपी. मतलब वो लोग हेल्थ केयर पे उतना स्पेंड नहीं कर रहे. तो अगर वो स्टेट जिनका हायर जीएसडीपी है वो अगर बेटर हेल्थ के ऊपर स्पेंडिंग करे तो आई थिंक शायद हेल्थ केयर जो है ऐसे स्टेट में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उन लोगों का डिक्रीज हो जाएगा, राइट? Yes. Sanjay, I've shared that image now. Just open Telegram में सर्वे में वो इमेज था. If you observe left hand side में y axis में it is health spend per capita. Okay. So if you see Assam, जो भी poorest state है, that is spending more. Just see above the line, Assam है, and then this Chhattisgarh, they are like spending better. If you see in terms of health spend per capita. But if you see in this line, जो भी Tamil Nadu, Gujarat, these are richer states. They are spending comparatively less per capita. So this is that line. Richer states are spending less. Correct. Per capita on health. ठीक है. Low human resources for health. According to WHO, aggregate density of health workers to be 44.5 per 10,000 population and an adequate skill mix of health workers to achieve composite SDG tracer indicators index by 2030. And lower range of 23 health workers per 10,000 population. मतलब low range है 23 health workers per 10,000 population है इधर, to achieve 80% of births attended by skilled health professional. काफी कम है 23 per 10,000. आई थिंक इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए उन्होंने ये लोअर साइड पे रखा है. Almost half है ना, 23, 45 चाहिए. स्टेटस क्या है? जैसे स्किल मिक्स दैट इज डॉक्टर नर्स मिडवाइफ रेशियो इज फार फ्रॉम एडिकेट. स्टेट लेवल वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ हेल्थ वर्कर
and skill mix reflects that while Kerala and Jammu Kashmir have a high density of doctors, states like Punjab, Himachal Pradesh, and Chhattisgarh have a larger number of nurses and midwives, but a very low density of doctors. Although aggregate human resources for health density in India is close to the lower threshold of 23, the distribution of health workforce across state is lopsided. मतलब जो लोअर डेंसिटी का थ्रेशोल्ड दिया है WHO ने उसके करीब तो है इंडिया, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कफोर्स है वो लॉपसाइडेड है. यानी अगर आप सदर्न स्टेट्स में जाओगे तो वहां पे आपको डॉक्टर्स नर्सेज एडिक्वेट मतलब सरप्लस में मिल जाएंगे. इसीलिए मोस्टली नॉर्थ में हम देखते हैं नर्सेज होती हैं वो साउथ इंडिया से होती हैं. अभी रिसेंटली ऑल्सो देयर वाज सम कंट्रोवर्सी इन दिल्ली के, मतलब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकाल दिया था कि नर्सेज शुड नॉट टॉक इन मलयालम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नर्सेज हियर वर फ्रॉम केरला साइड. तो वो चीज है कि लॉपसाइडेड बहुत ज्यादा है कि कई स्टेट है उनके अंदर कुछ डॉक्टर्स भी नहीं और नर्सेज भी नहीं, कुछ में सरप्लस है. एक इंडिया का शायद यूएन प्रोग्राम था ना, तो वहाँ पे शायद केरला की नर्सेस गई थी ईरान या इराक में, फिर फंस गए थे वो वहाँ पे. ओके. वही है क्या? नहीं एग्जैक्टली नहीं पता, बट कहीं पढ़ा था कि नर्सेस गई थी हेल्प करने. वो सलमान खान उनको बचा के लाता है यार मूवी कह रहे हो. Unregulated private enterprises in an industry marked by high level of market failure. So while the share of public institution has while the share of public institution has increased both in hospital and outpatient cares, the private sector dominates the total healthcare provision in India. Around 74% of outpatient care and 65% of hospitalization care is provided through the private sector in urban India. ठीक है. Quality of treatment in the private sector may not be significantly better than that in the public sector in India. क्यों काफी बेटर होता है ना प्राइवेट सेक्टर का? नहीं if you see starting में they talked about one word ना, information asymmetry. So that they will address now कि we feel कि private will give better service, but that is not so. survey prove कर रहा है अभी. ओके. ऐसा भी तो हो सकता है ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है और आई थिंक नहीं सर्वे विल स्टडी एवरीथिंग. इसमें अभी हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे ना, आई थिंक वो तीनों से रिलेटेड है कि क्यों मार्केट जो है वो सही नहीं है इसके लिए, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए खासकर. ओके. फिर भी प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है टोटल हेल्थ केयर में. However, the significant market failures that stem from information asymmetries in the healthcare sector were highlighted above. Therefore, unregulated private enterprises can create significant negative effects. जो unregulated होगा उससे तो negative effects रहेगा. For example, mortality rate for neonatal procedures is much higher in private hospitals than in public hospitals, 3.84% and 0.61% respectively. नियोनेटल का एक केस इसने दिया है कि वहां पर मोर्टेलिटी रेट जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू पब्लिक हॉस्पिटल. या एक बार नियोनेटल क्या था? नियोनेटल आई थिंक फर्स्ट 24 वीक्स होता है ना. अच्छा. 28 days ना. अच्छा सॉरी 28 डेज. मतलब चाइल्ड की मोर्टेलिटी हो जाती है मॉम की. Neo means new, natal is the child ना, so 28 days में child का death हो जाता है. अच्छा ठीक है. Finally, given the information asymmetries that make unregulated private enterprises suboptimal in the healthcare, a sectoral regulator that undertakes regulation and supervision in the healthcare sector must be seriously considered.
आई थिंक अभी इंडिया में ऐसा कोई रेगुलेटर एज सच नहीं है, अगर बात करें मतलब एमसीआई वैसे तो है हमारे पास, बट एज सच के क्या मतलब इन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए, मार्केट को एड्रेस करने के लिए, आई थिंक शायद हेल्थ केयर सेक्टर को एज सच मॉनिटर करने के लिए कोई है नहीं हमारे पास। आई थिंक प्राइवेट वालों को तो बिल्कुल भी नहीं है ना। प्राइवेट सेक्टर को कौन कंट्रोल करता है हेल्थ के मामले में? पॉलिसी प्राइस कैपिंग तो होती है ना, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में अब गवर्नमेंट ने करी है, तो मतलब कि कुछ कुछ तो रेगुलेशन होते ही है। मतलब पूरे हेल्थ केयर सेक्टर का नहीं होता ना होलिस्टिक, वो तो सिर्फ मेडिसिन का हो गया, फार्मास्यूटिकल्स का हो गया। आई थिंक एज सच उस पे ही काम कर रहे हैं वो लोग। जैसा अभी कंट्रोवर्सी हुई आयुर्वेदा और ये एलोपैथिक की, आई थिंक कोई एक सिंगल रेगुलेटर होता है सच हेल्थ के लिए, तो शायद ऐसी कंट्रोवर्सी अराइज ही नहीं होती। ठीक है, पॉलिसी सजेशंस देख लेते हैं। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स नीड टू इन्वेस्ट इन टेलीमेडिसिन ऑन अ मिशन मोड टू complement the government's digital health mission and thereby enable greater access to masses. Sanjeevani, e-Sanjeevani. In conjunction with Ayushman Bharat, the emphasis on National Health Mission should continue, as National Health Mission has played a critical role in mitigating inequity in healthcare access. एनएचएम को ही जन आरोग्य मिशन करा है ना? नहीं, ये अलग है। ये अभी अपन ने रिसेंटली कौन सी में लिखा है? अच्छा सॉरी, जन आरोग्य कह रहे हो क्या? तो आयुष्मान भारत, हाँ मैं सॉरी आयुष्मान भारत समझ रहा था, सॉरी। ठीक है, सही है। An increase in public spend from 1% to 2.53% of GDP envisaged in the National Health Policy 2017 can decrease the out-of-pocket expenditure from 65 to 30% of overall healthcare spend. ये तीसरी बार रिपीट कर दिया इसने इस पूरे चैप्टर में। As a bulk of समरी में नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है? As a bulk of the healthcare in India is provided by the private sector, it is critical for policymakers to mitigate information's asymmetry in healthcare, which creates market failures and thereby renders information asymmetry can be very useful in enhancing overall welfare. Quality and outcomes framework introduced in the National Health Service in the UK 2004 provides a good example in this context. Addressing this information asymmetry can also help lower premiums, enable the offering of better products, and help increase in insurance penetration in the country. ये तो अपन ने पीटी में भी देखा था ना, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना परसेंट है अभी? 2.5 या ऐसा। अभी मतलब कोविड के अंदर काफी इंक्रीज हो गया, तो पता नहीं नया क्या है, बट पहले कम था काफी। जहाँ तक मुझे याद है 5 to 6% इंक्रीज हो गया था। देखना पड़ेगा एक बार उसको, देखकर। 1890 का 3.7% दिखला रहा है, लेकिन रिसेंट का नहीं। कितना? 3 पॉइंट? नहीं, ओवरऑल दिखला रहा है, हेल्थ में। सॉरी। ठीक है, देख लेंगे इसको। Data from the National Digital Health Mission can be utilized even within the framework of data privacy with the aid of artificial intelligence and machine learning algorithms to mitigate information asymmetry with respect to patients. Data privacy with the help of AI and ML. ठीक है, बॉक्स में क्या है? Telemedicine. Impressive growth has been seen in the adoption of telemedicine in India since the outbreak of COVID-19 pandemic. This coincided with the imposition of lockdown in India and issuance of telemedicine practice guidelines 2020
by Ministry of Health and Family Welfare. ये e-Sanjeevani OPD, patient to doctor teleconsultation system, has recorded almost 1 million consultations since its launch in April 2020. Similarly, growth was also reported by Practo, which mentioned a 500% increase in online consultation in just 3 months. Nice. Number of telemedicine consultation correlates strongly with the internet penetration in state. Right. Specifically, investing in internet access can lead to greater uptake of telemedicine, which in turn can greatly help reduce geographic disparities in healthcare access and utilization. Conclusion देख लेते हैं. The recent COVID pandemic has emphasized the importance of healthcare, whereby a healthcare crisis transformed into an economic and social crisis. Considering the same and in above, and in striving to achieve the SDG target of universal health care coverage, India must take steps to improve healthcare accessibility and affordability in country. India's healthcare policy must continue focusing on its long-term healthcare priorities simultaneously to enable India to respond to pandemics. The health infrastructure must be agile. So out-of-pocket payments क्या होते हैं? They are defined by direct payments made by individuals to healthcare providers at the time of service use. This excludes any prepayment of health services, for example, in the form of taxes or specific insurance premium or contribution, etc. Free market, it is a type of economic system that is controlled by market forces of supply and demand, as opposed to one regulated by government control. So a point important is free market, because if you see generally they're told कि health system में market failure will happen, right? So whenever there is market failure, there will be someone to intervene. That will be government. So health case situation में supply demand forces will not work. So वो concept understanding is important. That's why health should always be a public good, ऐसा बोलते हैं ना. Privatization will do more harm. Right. ये फ्रांस, इटली और यूके में शायद गवर्नमेंट करती है ना कंट्रोल. करेक्ट. मतलब उनका मॉडल जो है हेल्थ केयर का, वो मतलब बोलते हैं कि उसी को अडॉप्ट करना चाहिए इंडिया को अगर करना है तो. हाँ, they mentioned ना in the previous page NHS UK का, that is best example is what survey has told that we can adopt. ठीक है. National Health Mission, it is a flagship program of Ministry of Health and Family Welfare with its two sub-missions, National Rural Health Mission and National Urban Health Mission. It supports states, UTs to strengthen their healthcare system so as to provide universal access to equitable, affordable and quality healthcare services. e-Sanjeevani, it is a platform independent browser-based application facilitating both doctor-to-doctor and patient-to-doctor teleconsultations. Chapter at glance, recent COVID has emphasized the importance of healthcare sector and its interlinkages with other key sectors of economy. Health affects domestic economic growth directly through labor productivity and economic burden of the illness. In addition to providing healthcare services and financing healthcare, a key role for the government is to actively shape the structure of healthcare market. India continues to underperform in healthcare access and quality. Sectoral regulator that undertakes regulation and supervision of healthcare sector must be seriously considered. National Health Mission has played a critical role in mitigating inequity as the access of poorest to prenatal and postnatal care as well as institutional deliveries has increased significantly. An increase in public spend from telemedicine needs to be harnessed to fullest by investing in internet connectivity and health infrastructure. और हमने स्टार्टिंग में 3 देखे थे हेल्थ केयर के हाइपरबोली टेंडेंसीज, एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन और क्या था और क्या uncertainty ना.
uncertain. Uncertain. So वो you cannot anticipate the demand कब health breakdown हो जाए. Correct. ये फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं अब. 5 हैं. ठीक है. मैं पढ़ देता हूँ. With reference to health workers in India, consider the following statement. The total density of health workers is estimated to be less than 50 per 10,000 population in India. बताओ करेक्ट है कि नहीं? 43 कह रहे थे ना. 23 था ना शायद. 43 WHO का था और 23 इंडिया का एक्चुअल है. ठीक है, तो ये करेक्ट होना चाहिए. सेकंड, एज पर द 7th शेड्यूल, हेल्थ इज द सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट. सही है. सही है. थर्ड, इंडिया हैज द लोवेस्ट लेवल्स ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन द वर्ल्ड. ये गलत है. 5%. हाईएस्ट है. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं. करेक्ट करेक्ट. हाईएस्ट है ना, तो फिर ये वाला गलत हो जाएगा. तो 1 and 2 इसका आंसर होना चाहिए. तो चलते हैं. With reference to National Health Mission, consider the following state. First, it is flagship program. आंसर चेक किया क्या उसका? अरे अपने को पता है उसका आंसर यही है, तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं उस पर. उसका डी दिया हुआ था. 5th चैप्टर है ना ये? 4th. डी क्यों दिया हुआ है फिर? अरे तो लास्ट वाले पे तो नहीं चला गया? बीच में है वो. अच्छा, बीच में वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है. ओके ओके ओके. हाँ, मैं लास्ट में चला गया था. ठीक है. 5वें का ये है ना. 1 and 2. नेक्स्ट इज इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ये तो सबको पता ही है, पढ़ा ही है जिसका भी. देन इट सपोर्ट स्टेट टू स्ट्रेंथन देयर हेल्थ केयर सिस्टम. ये भी सही है. तो डाउट तो नहीं है ना इसमें? तो वैसे नेशनल हेल्थ मिशन है क्या, उसमें क्या किया है? ये हम स्कीम्स में पढ़ना है इसको, राइट? स्कीम्स में थोड़ा डेप्थ में एक बार पढ़ रखा है, बाकी एक बार स्कीम्स में और इसको आई थिंक डिस्कस कर लेंगे. इसके 2 पार्ट है ना, नेशनल अर्बन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. हाँ, अभी समरी में दिया था. हाँ, अभी पढ़ा था. ठीक है. ई संजीवनी. ई संजीवनी क्या है? A वेब बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव टेलीमेडिसिन सॉल्यूशन. डॉक्टर टू डॉक्टर एंड डॉक्टर टू पेशेंट भी कंसल्टेशन सर्विसेज देते हैं. करेक्ट. With reference to Economic Survey 2021, consider the following statement. First is increased prioritization of healthcare's budget protects citizen against financial hardship. I think generic statement है, तो ये तो हमेशा ट्रू होगा. Next is life expectancy in a country correlates positively with per capita public healthcare expenditure. ये सही है क्या? हाँ, ये भी देखा था. ये भी सही है. Then maternal mortality correlates negatively with increase in per capita health expenditure. ये भी सही है. ये भी सही है. ठीक है, तो 4th का डी होना चाहिए. 4th का डी है. सही. लास्ट क्वेश्चन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में. कंसीडर द फॉलोइंग. लेस देन 30% ऑफ ऑल डेथ्स इन इंडिया आर कॉज्ड ड्यू टू NCDs. क्या फिगर क्या कहता है? ये तो सही है ना? 30 और ऑलमोस्ट 50% है. ग्राफ में देखा था ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा था. ये मोर देन 50% है. आई थिंक अराउंड इनफैक्ट 60% के आसपास है. नेक्स्ट, बिटवीन 1990 and 2016 the contribution of NCDs to all death has decreased sharply. ये भी देखा था ग्राफ में, बढ़ ही रहा था. तो आई थिंक दोनों ही गलत. इसका परसेंटेज क्या था ये फर्स्ट स्टेटमेंट में? ऑप्शन 60 समथिंग वो ग्राफ में था ना. ये 65 था कि सेम है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. ये देखो 65 के आसपास है यहाँ पे. ठीक है. आई थिंक इसमें शायद क्वेश्चन में गड़बड़ी कर रखी है उसने. क्वेश्चन में मल्टीपल स्टेटमेंट दे रखे. एक्चुअली इफ यू सी ना, इस चैप्टर में एक वर्ड यूज किया था, saliency bias. So we have high NCDs, but COVID is communicable ना, so we must not lose focus on. मतलब आई थिंक इसमें यही था ना कि इनिशियली जब कोविड ही हो रहा था, मतलब
it was sort of like war के मतलब वॉर के अंदर इकोनॉमी सिर्फ वॉर के लिए बनाती है और वॉर के लिए ही कर सब कुछ वॉर के लिए होता है। सिमिलरली इंडिया के अंदर भी ऐसा ही सिचुएशन हो गया था कि एवरीथिंग वाज फॉर कोविड, मतलब सारा हेल्थ केयर वाज डेडिकेटेड टू कोविड। तो उस चक्कर में कई लोग बच्चे थे उनका इम्यूनाइजेशन मिस हो गया। इंडिया ने इतना जो स्ट्राइड्स अचीव किए थे इन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, वो कहीं ना कहीं इंडिया सेटबैक करने वाला था, या फिर न्यूट्रिशनल टारगेट्स में भी इंडिया ने सेटबैक करा है उसके अंदर। आई थिंक वो अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं है, बट आएगी तब पता लगेगा कि उसमें काफी सिर्फ कोविड के फोकस करने के चक्कर में वो एलियंस बायस वाला चीज हो गया। So we focused entirely on COVID and did not focus on non-communicable diseases. Correct. That is why NHM is very important because वो structure set करता है सारा system का। तो इसलिए chapter is talking too much of NHM. और इसने 3 बार एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया, तो आई थिंक आप आंसर में भी यूज कर सकते हो। इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंड फ्रॉम 1% to 2.5% of GDP would reduce out of pocket expenditure from 65% to 30%। ये था, ये चौथी बार हुआ है। चौथी बार हो गया। ऑलराइट, ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं अपन। ओके Okay guys, bye, thank you. बाय। प्लान प्लान क्या प्लान है? ये आवाज सही नहीं आई यार। अरे स्टैटिक के लिए कैसे करना है मतलब? संजय का सब तैयार है, ठीक है। आप लोग आपस में कर लेते हैं डिस्कस, ठीक कोने में बैठ के। बात आ रही है? आ रही है लेकिन कम आ रही है। स्टैटिक के प्लान के लिए मतलब कैसे करना है? जैसे अपन प्रीवियस क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं, मेंस का राइटिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं अभी तो काइंड ऑफ मतलब 100 डेज के लिए कैसे मूव अहेड करना है? Guys, just I wanted to ask, I think आपका ऑप्शन पे बहुत टाइम जा रहा होगा ना? मेरा भी वही हाल है, सबका वही हाल है ना? बहुत ज्यादा। So we are doing this afternoon previous discussion, and Sanjay, I mean Akshay is doing that scheme discussion. तो कहाँ fit करना चाह रहे हैं अक्षय? I mean we'll replace जो भी हरी का राइटिंग के लिए करा था ना, स्टार्ट राइटिंग के लिए, एंड ये जो इसमें अपन प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं, इन दोनों को मर्ज करना है कहीं ना कहीं। एंड मतलब एक टारगेट रखेंगे कि जैसे इकोनॉमी करना है तो 10 दिन में इकोनॉमी हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ। You mean economy prelims या क्या है? बोथ मतलब मर्ज कर लेना अपन, वो ये कह रहा है। हाँ मतलब बेसिकली वी हैव टू गो ये टारगेट बेस्ड अप्रोच। भाई इस हफ्ते में ज्योग्राफी खत्म करना है काइंड ऑफ। So we can do one thing now. We are doing previous PYQ discussion. So for example, if we do monetary policy MCQ, तो we'll parallelly ensure कि monetary policy static भी पूरा रिवाइज करें, ऐसा भी हो सकता है ना? हाँ वही कह रहा हूँ मैं तो। बट देन इन दैट केस नो वी जस्ट हैव टू फिक्स द डेडलाइंस कि भाई इतने दिनों के बाद वी हैव टू मूव ऑन टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, फिर खत्म ही नहीं होगा ना कभी। हाँ, that must be consciously done ना कि when we do poverty we must revise poverty, we must do। मतलब अभी अपन इकोनॉमी कर रहे हैं ना, वी डोंट नो कि इसके बाद क्या करने वाले, कितना लंबा करने वाले, कितने दिन देने वाले हैं। तो वी शुड फिक्स कि भाई 100 डेज बचे हैं, इन दैट हाउ आर वी प्लानिंग कि भाई स्टैटिक एंड PYQ प्लस राइटिंग, मतलब नंबर ऑफ डेज पर सब्जेक्ट डिसाइड करना है। करेक्ट, प्लान तो करना ही है। सब्जेक्ट पोर्शंस